A very good morning to all. Am I audible? If I'm audible, please raise your thumb. Okay. So I welcome you all for this Judo Coaches Education Program. Today, our speaker will be Mr. Munawar Anza, Secretary Technical Council JFI. Now I would request Mr. Manmohan Jaiswal sir, Secretary, General Secretary JFI, to speak a few words. Good Jaiswal morning, sir. everyone. Good morning, Mr. Anjar. Welcome all of you on the 10th day, 10th session. Day is the 12th, but because there are 2 Sundays in between, the session is the 10th of this online coaching development program. I think everybody is taking benefit of all this. And once again, I request to do the registrations, those who have not done the registration, because on the request of many of the coaches, SAI has opened the registration. And evening, there are sports science sessions also. This is also very fruitful. I think everybody's, most of you have joined. Please. And now, my colleague, Mr. Anjar, world referee, he will brief about the new IJF rule. Thank you. Thank you, sir. Munawar sir. Yes. Over to you, sir. Okay. Good morning, everybody. First of all, आप लोग को आप घर पे होंगे और कोविड-19 की वजह से सारे पालन कर रहे होंगे, हाथ ठीक से धो रहे होंगे, ये सारी बातें आप लोग बराबर देख रहे हैं। लेकिन आज हम जो जूडो का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं और वो क्लिप जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद फिर मैं आपसे बात शुरू करूंगा। तो आप जो है मेरी क्लिप देखें। Just a second, please. सर कुछ इश्यू है क्या सर? या वो क्लिप जो है वो आप एक सेकंड. It's not. I'm not getting that clear. Actually. It's not get. I'm not getting a share with that clip. Actually. सर आप वो पहले जैसे हमने किया था आप ओपन करके रखे हैं ना वो क्लिप? Yeah. उसके बाद आप शेयर ऑप्शन पे जाइए नीचे. आ गया. अभी आ गया. Okay. Judo is an Olympic martial art where competitors known as judokas face opponents in single combat in a tournament of elimination. The founder of modern judo, Jigoro Kano, had a philosophy of maximum efficiency, minimum effort. This is key to the sport of judo. Judokas must wear a special jacket, trouser, and belt, the judogi. In competition, players wear white or blue. The judogi is essential to the strategies and tactics of the sport. Gripping up is critical. The person who dominates the gripping of the jacket will normally be in the best position to dominate the fight. Many variations of grips are allowed as long as they're deemed positive with the intention to throw. Negative gripping is the intention to block without the intention to throw. So how do you play and how do you win? Each fight is up to 4 minutes long. Opponents begin the fight with a bow. This is fundamental to the principles of judo. The referee then signals the start of play. The contest begins. The highest score is an ippon. This is the ultimate score because it wins the contest outright and it finishes the fight. There are 4 ways to score ippon. The first one is to throw your opponent on their back with force.
And this can be done using a variety of throws from many different directions, sometimes as a direct attack and sometimes countering an opponent's attack. Ippon can also be awarded during groundwork. If you hold your opponent on their back for 20 seconds by controlling the upper part of their body, then Ippon is awarded and the contest is finished. Two other ways to win by Ippon are to gain a submission, either by arm locking or strangling your opponent. If your opponent taps out, Ippon is awarded and the contest is finished. Wazari is the next highest score. If 2 Wazaris are scored, then Ippon is awarded. Wazari is scored for a throw that is not quite the force that warrants an Ippon, so a throw that lands the opponent onto their side, shoulders, or rolls them onto their back. You can also score a Wazari for a 10 to 19 second hold down. If all is equal at the end of the contest, a period of golden score will begin. In golden score, play continues until a Wazari or Ippon is scored. There is also a penalty system. Disqualification or Hansakamaki can be given for major breaches of the rules. Any behavior not deemed to be in the spirit of the sport. Penalties for smaller infringements of the rules are shidos. A shido might be given for stepping out of the allotted mat area, pushing your opponent purposely outside of the mat area, any touch of the opponent's legs whilst throwing or in defense, not attacking your opponent quickly enough, or purposely using negative gripping tactics against your opponent without attacking yourself. Judo has a moral code that operates on the principles of politeness, courage, sincerity, modesty, respect. Okay, I have to come out from here. Okay. No. Yes. सर आपका अभी आप दूसरा शेयर करना चाह रहे हैं तो नहीं, I just want to talk first. You can go ahead, sir. So, are you? You can see me? Yes, sir. Yes, sir. You can stop sharing so that your this one also window will pop up. Okay. Stop sharing. So I have to first close it. Stop sharing. Okay. Yeah. Now you're visible, sir. Okay. Now, जैसे कि आपको ये वीडियो दिखाया, मोस्टली सारे सीनियर्स ने देखी होगी, लेकिन जितने भी हमारे नए कोचेस हैं उनको एक ब्रीफ है जूडो का कि ये जूडो और उसके स्कोर और उसकी पेनल्टीज, और आखिर में जो मिस्टर नील एडम जो कि वर्ल्ड के रिनॉर्ड कोच हैं, उन्होंने ये बताया कि जूडो में रिस्पेक्ट, सिंसियरिटी और आपकी मेहनत और लगन जो है वो ही आपको सब कुछ दे सकती है। तो सबसे पहले मैं जो आज मैं रेफरिंग रूल्स शुरू करूं, कुछ पॉइंट्स है मेरे जहन में जो भारतीय जूडो को लेके, तो वो हम लोग मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग बहुत चाहते हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल मिले, लेकिन ओलंपिक में मेडल मिलना सिर्फ हमारे खिलाड़ियों से या कोचेस से या फेडरेशन से नहीं हो सकता, जब तक कि हमारे अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ट्रेनिंग की। हमारी बेसिक ट्रेनिंग जो है आज की तारीख में, जो हमारे कोचेस हैं और जो खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा खिलाड़ी जो है एक बहुत ही ऊंचे मकाम पे पहुंच जाए। उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती। उसको जब शुरू में जूडो हम लोग 20 साल पहले, 25 साल पहले जूडो में जो लोग खेलते थे, जो ओलंपियंस बने हैं, अगर आप उनको देखें तो उन्होंने किस बेस में नीचे जूडो शुरू किया, बेसिक से, और बेसिक के बाद धीरे धीरे वो ऊपर आए। लेकिन आज जो हमारा खिलाड़ी है उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत तेजी से ऊपर आना चाहता है, लेकिन वो जूडो के बेसिक्स में नहीं जाना चाहता, वो नहीं सीखना चाहता। ना ही कोचेस हमारे
उसके ऊपर ध्यान देते हैं, खासतौर से नए कोचेस, क्योंकि जब वो सीनियर कोचेस के पास आता है तब तक वो बना हुआ होता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो कोचेस हैं वो बेसिक ट्रेनिंग खिलाड़ियों को बहुत जरूरी है देना। बेसिक जो है टेक्निक्स जानना, बिना बेसिक टेक्निक्स और जानकारी लिए हुए जूडो की वो आगे बड़े खिलाड़ी बनने में असमर्थ रहेंगे। वो बात अलग है कि एक आध खिलाड़ी कोई भगवान की वजह से, ऊपर वाले की वजह से बिल्कुल आउट ऑफ टर्न निकल जाए। उसके अलावा एक जो आज भारत के अंदर अगर हम देखें, हमारे चाहे वो फेडरेशन हो चाहे कोचेस हो, आपस में एक तालमेल की बहुत बड़ी कमी है, चाहे वो हमारी नेशनल फेडरेशन में भी हमारे आपस में। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कोचेस में हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो बड़ा कोच हो गया है, जो छोटा कोच है, हर छोटा कोच भी और बड़ा, हर आदमी अपने आप को एक बड़ा कोच समझता है। हर जो है अपने अपने बच्चों को वो चाहता है कि सिर्फ वो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें। तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें, जापान में देखें, आप कोरिया में देखें, वर्ल्ड में दूसरी हर जगह, हर कंट्री में आप देखें कि सिर्फ अपने ही कोच की नहीं, अपने दूसरे कोच की भी इज्जत करना बहुत जरूरी है खिलाड़ियों के लिए, और एक कोच को दूसरे कोच के लिए भी। जब कंपटीशन होता है तो आप देखते हैं कि बहुत सारे हर कोच ये चाहता है और हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं जीतूं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कभी कभी उस लेवल की नहीं होती। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि जिस तरीके से मैं कोच हूं, जिस तरीके से मेरा खिलाड़ी है, उसी तरीके से दूसरा कोच है और उसका खिलाड़ी है, और जो अच्छा खेलेगा मैच पे वो जीतेगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। और अब हम आते हैं कि कोचेस के बाद रेफरीज पे। अब जैसे रेफरीज हम कई बार ये देखते हैं कि रेफरीज जो है वो बायस हो जाते हैं, और वो अगर वो आउट ऑफ द मैट हैं तो भी और मैट में हैं तो भी जो है वो एक साइड लेते हैं किसी की। ये बहुत खराब बात है। अगर आपको जिस तरीके से एक अच्छा खिलाड़ी बिना मेहनत के, बिना डिसिप्लिन के ऊपर नहीं जा सकता, उसी तरीके से एक रेफरी भी जो है वो ऊपर नहीं जा सकता। उसको भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, उसको ये अवॉइड करना होगा, उसको ये सोचना होगा कि हम जो एक्चुअल हमारी डिसीजन है वो हम दें, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि साहब ये फला का है, अगर हम इसको जिता देंगे तो हमें दोबारा टूर्नामेंट में मौका मिलेगा। हम लेकिन अगर आप बायस नहीं होंगे और आप बिल्कुल जो है मुस्तैदी से अपना काम करेंगे, जो रूल कहता है उसके हिसाब से आप जो है, कोई भी हल्ला करे कुछ करे, बट जो रूल पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द बेस्ट रेफरी, और कोई आप पे कभी भी उंगली नहीं उठाएगा। अब हम एक आपको रेफरिंग का पावर पॉइंट प्रोग्राम दिखाना चाह रहे हैं जो कि रूल्स हैं, और उसको उसको जल्दी से आप लोग को अपडेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसको जो कि हम हमसे मिस होती हैं, जो हम देख नहीं पाते और उसको हम पकड़ नहीं पाते और वो छूट जाती हैं, तो उन पे पैनी नजर रखेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूं आपको रेफरिंग पावर पॉइंट प्रोग्राम जो कि आईजेएफ ने बिफोर ओलंपिक्स 2020 18 से जारी किया था, उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। तो नेक्स्ट मैं वो शेयर कर रहा हूं आपसे। आईजेएफ 1820 के रूल्स हैं। ये जो न्यू आप देख रहे हैं, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो ब्लू स्क्रीन आप देख रहे होंगे अपनी राइट स्क्रीन पे, तो ये रूल्स हैं। और जो कि मेन पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि वर्किंग कमेटी ने फाइनल किया है कि जो ड्यूरेशन कॉन्टेस्ट का वो 4 मिनट का है। एवोल्यूशन ऑफ द पॉइंट, ताचीबाजा में खड़े होके पॉन जो है उसके लिए स्पीड, फोर्स, ये सब आप लोग जानते हैं, बेसिक चीज है। वजारी कैसे दिया जाता है ये भी जानते हैं। अब हम आते हैं कि वजारी जो आज की पोजीशन है, वो वजारी के किन किन पोजीशन में कैसे आप जो है लैंड करते हैं तो आपको वजारी दिया जाएगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप एल्बो के पे जो है और साइड में लैंड करते हैं, और अगर आपका हाथ बाहर है तो आप वजारी आप को जो है दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका हाथ अंदर है, आप साइड में है, आपका
न साइड लगा है और ना ही आपका साइड लेग लगा है, तो आपका वजारी नहीं होगा। उसी तरीके से आप जो ब्रिज और हेड डिफेंस में क्या अंतर है कि जब ब्रिज होगा, कोई भी आप जो सीधे जब थ्रो करते हैं, जब ब्रिज बनाता है, एक पैर या दोनों पैर अगर उसके ग्राउंड पे हैं और हेड और बीच में ऐसी एक यू बनता है तो रिवर्सल, तो उसमें आपको अपॉन मिलेगा। लेकिन वहीं उल्टा जब हेड डिफेंस कोई भी करता है, थ्रो होता है, तो सिर्फ अगर स्ट्रेट हेड उसका जिसमें कि जो है चोट लगने का, जिंदगी जाने का खतरा होता है, इसलिए उस पर हंसों को माके मिलेगा। और स्पेशल कहां कहां पर हंसों को माके नहीं देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब हम शियोतोशी करते हैं, यानी कि ड्रॉप शियोनागी, जब हम मैट के करीब से नीचे से एक थ्रो करते हैं जिसमें कि मैट बहुत करीब होता है, तो वो जो भी टेक्निक है, जैसे सोदे सूरी कोमी गोशी है और कोशिग्रुमा है, तो इन सब में आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे कि जब भी ये करीब से होगा और अगर आपका हेड जा रहा है, तो इसमें इस वक्त कोई पेनल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसमें अपोनेंट के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने आप को, क्योंकि पूरा कंट्रोल होता है दूसरे जो थ्रोअर है उसके पास, कि वो जो है ये उसको चांस नहीं देता कि वो वापस जो है अपना हेड जो है हटा सके। उसी तरीके से नो पेनल्टी, ये आप कोशिग्रुमा में देखें कि किन सिचुएशंस में पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अटैक एंड काउंटर अटैक, काउंटर अटैक में लैंडिंग में साइड में यूको सुतेमीवाजा मा सुतेमीवाजा जो है कैनॉट स्कोर unless he takes clear control of the movement ताचीवादा position and finishes the action। यानी कि अगर आप जो है जब कोई भी थ्रो होता है तो आप मा सुतेमीवाजा योको सुतेमीवाजा में क्लियर कंट्रोल अगर नहीं होगा तो आप कोई भी जो है स्कोर नहीं होगा। और एनी एक्शन लैंडिंग विद द कंसिडरेशन एज ए नेवादा एक्शन, तो आप अगर लैंड करेंगे और नेवादा एक्शन में आप जा सकते हैं, यानी कि नेवादा में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद सबको मालूम है वजारी 10 से 19 और 20 पे जो है अपॉन होता है। पूरा पोजीशन जो नया रूल कहता है कि जो पूरा पोजीशन है, पहले ये अलाउ नहीं था कि अगर जो है पूरा पोजीशन में जैसे कि चेस्ट जो है वो रूफ की तरफ होती है, छत की तरफ, तो भी ओसाइकोमी अप्लाई होता है। और इस तरीके से ओसाइकोमी अगर आपके दोनों पांव नीचे हैं और आप ऊपर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस पोजीशन में ओसाइकोमी अलाउ नहीं है। और ओसाइकोमी किन किन सिचुएशंस में कंटिन्यू रहेगी ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें यह भी है कि आप ओसाइकोमी कॉन्टेस्ट एरिया से ओसाइकोमी अगर आप मूव कर रहे हैं बाहर, तो भी ओसाइकोमी जो है कंटिन्यूएशन, ओसाइकोमी कंटिन्यू भी रहेगी। और दूसरा, अगर आप अंदर हैं और उसके बाद ओसाइकोमी पोजीशन आप लेते हुए बाहर चले जाते हैं, यानी नेवादा पोजीशन में बाहर जाते हैं, तो भी आपका अगर कंट्रोल होगा तो कंटिन्यूअस वो चलेगा और उसके बाद ओसाइकोमी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। 4 मिनट के कॉन्टेस्ट में टेक्निकल स्कोर और वजारी पॉन के साथ, पेनल्टीज में हंसोकुमाके के साथ जो है आप जीत सकते हैं। देयर आर नाउ 2 शिदो एंड थर्ड इज हंसोकुमाके। जैसे कि आपको मालूम है, गोल्डन स्कोर में आपको मालूम है कि जो है हम जब तक कि वजारी ना हो जाए, चाहे स्टैंडिंग थ्रो में या जो है इपॉन या जो है वजारी ग्राउंड में, तब तक आप, और या हंसोकुमाके अपोनेंट को, तब तक जो है आपका गोल्डन स्कोर बाउट चलती है। जो टाइम था कुमिकाता में, जब जैसे आप होता था कि हमने कुमिकाता किया, नॉर्मल कुमिकाता में हम वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है कि पहले ये था कि आप जो है जल्दी से पकड़े, 3 से 5 सेकंड में आपने लिया और आपको
टेक्निक लगानी है या आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, तो अभी थोड़ा सा उसको इंक्रीज किया गया है, बट लेकिन उसमें प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। पोजीशन ये नहीं होना चाहिए कि आप अटैक नहीं कर रहे। तो अटैक की पोजीशन वही होगी कि अगर आप 10-15 सेकंड नहीं अटैक करते हैं, खाली आप दिखा रहे हैं कि मैं अटैक कर रहा हूं और उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई खुजूशी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप नहीं जो है वो अटैक नहीं माना जाएगा। अब आप आते हैं शीदो पे कि हम ग्रिप कैसे कैसे जो है ब्रेक करेंगे तो हमें शीदो मिलेगा। जैसे कि अगर दोनों हाथों से हम ये आपको पोजीशन दिखाई जा रही है, अगर आप ग्रिप को ब्रेक करते हैं, इससे आप छुड़ा नहीं सकते इस तरीके से। अगर आप इस छुड़ाएंगे तो आपको शीदो मिलेगा। अगर आप अवॉइड करेंगे ओके की अपोनेंट की ग्रिप और या आप उसको पुश करेंगे, धक्का देंगे या आप उसको हाथ को हिट करेंगे तो भी शीदो मिलेगा। या अपने हाथ से आप जो है जुडोगी निकाल देंगे या जो है उसका लेपल से आपने निकाला या आपका अपोनेंट भी अगर आप की जुडोगी निकाल देता है तो भी उसे शीदो दिया जाएगा। अपोनेंट्स के हैंड्स अगर ब्लॉक होंगे तो भी शीदो है। और जब अगर हम पांव से ब्रेक करते हैं ग्रिप को तो भी शीदो दिया जाएगा। जुडोगी की जो है बिल्कुल टाइट फिट होनी चाहिए और कॉम्पिटिटर जो है वो जब से ही माते और हजमी के बीच में वो अपनी जुडोगी को अगर निकल गई है खेलते हो तो एडजस्ट कर सकता है। अगर बार बार कोई किसी की जुडोगी निकल रही है और उस टाइम पे वो पूरी जुडोगी निकल जाती है और ड्यूरिंग माते और हजमी के दरमियान जब वो वापस अपने जगह पे आता है और वो अपनी जुडोगी को सही नहीं कर पाया और वो बाहर रहती है, तो बार बार अगर ऐसा होता है तो रेफरी जो है उसको इशारा एक दफा करेगा कि आप जो है अपनी जैकेट अंदर कर लें। और अगर वो बराबर इस तरीके से दोबारा तिबारा अगर ऐसे हुआ तो फिर उसको शीदो मिलेगा और कंटिन्यू बाद में भी फिर उसको शीदो दिया जा सकता है। अनकंट्रोवर्शियल कुमिकाता, सबसे बड़ी बात है कि अनकंट्रोवर्शियल यानी कि पिस्टल ग्रिप, पॉकेट ग्रिप, बेल ग्रिप, वन साइड ग्रिप, क्रॉस ग्रिप में ये कहा गया है कि आप ये अनकंट्रोवर्शियल है, इनको आप पकड़ सकते हैं लेकिन पकड़ते ही आपको इमीडिएट अटैक करना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएट अटैक नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी और वो होगी शीदो। ये आप देख लें कि ये भी अनकंट्रोवर्शियल कुमिकाता है। अगर आप इमीडिएट अटैक नहीं करते हैं तो इस पे भी शीदो मिलेगी। इसमें कोई टाइम नहीं है कि आप जो है आप जैसे ही इस जो है ग्रिप में जाते हैं आपको इमीडिएट अटैक करना है। नहीं, ये नहीं है कि आपको हम देखें कि आपने 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, बट इमीडिएट का मतलब इमीडिएट 1, 2 and 3 स्टॉप जैसे माते एंड पेनलाइज। उसके बाद वन साइड ग्रिप हो गई, आप देख सकते हैं इसमें भी सेम पोजीशन है कि आपको यू हैव टू अटैक इमीडिएटली। और अगेन the same position, like there are different position, but this is if you are not going for immediate attack, you will be penalized, and this is the other situation. Like सूरीकोमी गोशी के लिए अगर आप दोनों हैंड्स पकड़ते हैं और या आप जुडोगी का लोअर पार्ट एंड जो है उस जो है आप एक साइड से ग्रिप करते हैं या इमीडिएट अटैक नहीं करते पकड़ के तो भी आपको शीदो दिया जाएगा। बैंडिंग पोजीशन, एक होता है कि आप अपने आप बैंड कर रहे हैं और एक होता है कि दूसरा आपको नीचे कोशिश कर रहा है बैंड करने की। तो उस पोजीशन में ये देखना है कि अगर आप अपने आप बैंड कर रहे हैं, बैंड करके खेल रहे हैं, तो आपको या आप दूसरे के अपोनेंट को ब्लॉक कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड है कि आप नहीं खेलना चाह रहे, आप उसको ब्लॉक करके रखना चाह रहे हैं,
तो भी आपको जो है आपको शीदो मिलेगा। और लेकिन अगर दूसरा अपोनेंट आपको ब्लॉक कर रहा है, अगर वो फर्ज कीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई थोड़ा सा बड़ा अपोनेंट होता है, आपके हाइट से अपोनेंट से बड़ा है, वो नीचे दबा के आपको खेलना चाहता है और ब्लॉक करना चाहता है या नीचे आपको झुकाना चाहता है, उस पोजीशन में उसको मिलेगा। अब हम आते हैं कि 1 or 2 feet outside the contest area, अगर हम 1 या 2 हमारे पैर नॉर्मल तरीके से खेलते हुए बाहर जाएंगे और हमारा कोई अटैक नहीं होगा और हम बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इंटेंशनली बाहर जा रहे हैं, तो आपको जो है शीदो दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अटैक करते में गए और इमीडिएटली आप अंदर आ गए और तो आपको शीदो नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अब हम आते हैं बेयर हक पे। तो बेयर हक जो आज की तारीख में आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो थोड़ा पावरफुल खिलाड़ी हैं या जो कई टेक्निक्स के साथ अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं कि वो पूरा ग्रैब करके, लेकिन डायरेक्ट अगर आप ग्रैब करते हैं, यानी कि अगर आप कुमिकाता नहीं करते और डायरेक्ट आप जाते हैं किसी को लेके और थ्रो करते हैं, तो वो बेयर हक कहलाता है। और अगर आप कुमिकाता करेंगे, यानी कि आप उसकी गी एक हाथ से पकड़ के उसके बाद आप उसी कंटिन्यूएशन में जाते हैं, तो वो अलाउ है। और वैलिड ग्रिप्स आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड स्टेप्स दिखाए हैं कि कैसे कैसे किस तरीके से आप ग्रिप कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है बेयर हक की क्या पोजीशन होगी जो वैलिड है। उसके बाद आता है डबल पॉइंट बेयर हक में कि अगर एक ने थ्रो किया और दूसरा जो है एक ने बेयर हक किया, दूसरे ने थ्रो किया, तो अगर if after a blue bear hug or blue touching the leg for the first time, white throws blue for a wazari, the score white wazari and the penalty blue shido will be given. तो जो अगर बेयर हक करेगा ब्लू, तो और अगर हम व्हाइट वाले ने उसे थ्रो कर दिया और वो गिर गया, तो वजारी व्हाइट को मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि बेयर हक किया था, पोजीशन उसने ग्रैब किया था ब्लू ने, इसलिए ब्लू को जो है वजारी के बाद जब माते होगा, अगर नेवाजा में बाउट नहीं जाती है और माते हो जाता है और जब दोबारा दोनों खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं, तो उस वक्त जो है वो शीदो दिया जाएगा। और अब आप देखें कि कब हम शीदो पेनलाइज करेंगे, जब हम की लेग इंटेंगलमेंट पोजीशन में होंगे। इंटेंगल जो है यानी कि हम पांव अंदर डाल के और अपने आगे के पंजे से जो है दूसरे के पांव को रोक देते हैं या ग्रैब कर लेते हैं, या आप कहें कि हम उसको क्लिप कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं। तो उस पोजीशन में अगर आप जाते हैं और आप इमीडिएट अटैक पे नहीं जाते हैं, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, यानी कि आप उसको हार्ड करने की पोजीशन में आप खड़े हैं और जो है आपको जो है शीदो दिया जाएगा। कवाजुका के में अगर कोई भी अप्लाई करता है जो है आपके पैर को क्लैम्प करके थ्रो करता है, तो जो है उस वक्त आपको जो है हंसोकुमा के, जो भी थ्रो करेगा उसको हंसोकुमा के दिया जाएगा। तो और उसके अलावा भी लैग ग्रैबिंग जो है वो आपने को जैसे कि मालूम है कि बिलो द बेल्ट अगर आप जो है जुडोगी को किस किस पोजीशन में आप जो है शीदो मिलता है और कौन सी पोजीशन जो है वो आप लेग ग्रैबिंग की अलाउ है। जब आप अटैक करते हैं उस वक्त अगर आप अपोनेंट का पांव पकड़ लेते हैं और या फिर अपोनेंट आप अटैक कर रहे हैं या काउंटर कर रहे हैं, अपोनेंट आपका पांव पकड़ लेता है, तो जो है वो शीदो
और दिया जाएगा, जिसमें 2 फर्स्ट शीदो, फिर से आप अगर लैग ग्रैब करेंगे सेकंड शीदो, और फिर हन सुकुमाके। ये बिल्कुल मनाही है। और लैग ग्रैबिंग देखिए, आप सिचुएशन देख लीजिए कि अगर आपने कहां से उसको कहां आप पकड़ेंगे या आप रोकेंगे तो मनाही है। और कहां अलाउड है, अब आप देखिए इसमें जो पहले की सिचुएशन थी, अगर आप देखें, देखिए उसमें हमारे हाथ मोस्टली जो है वो हम डायरेक्ट पैर पे, यानी कि उसको हम पैर वो कंट्रोल कर रहे थे। हमारा हाथ जो था उसके लेग्स को कंट्रोल करने के लिए था। लेकिन अब जो सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि लेग ग्रैबिंग कहाँ अलाउड है। ये लेग ग्रैबिंग एक्चुअली में नहीं है, ये लेग को सपोर्ट है आपके शोल्डर का, हाथ इसमें कहीं नहीं है। अगर आप देखें हाथ आपका बहुत दूर है। पहले जो हम लेग ग्रैब कर रहे थे वहां पर हमारा हाथ वर्क कर रहा था, यहां हमारा हाथ अपोनेंट की जुडोगी पे वर्क कर रहा है। हमारा शोल्डर के साथ जो एल्बो तक का सपोर्ट है वो हमें जो है मिल रहा है, जिससे हम ये थ्रो कर रहे हैं और हमें इसके ऊपर पॉइंट मिलेगा। शीमेवादा में आपको अपनी जैकेट या बेल्ट या अपोनेंट की जैकेट या बेल्ट अलाउ नहीं है। पहले लोग जो है ये अलाउ करते थे कि हम अपनी अपोनेंट की बेल्ट से या अपनी बेल्ट से या दूसरे की बेल्ट अपनी बेल्ट से या मतलब जुडोगी से के अपर पार्ट से हम उसको जो है शीमेवादा की पोजीशन में अप्लाई करते थे लाके। लेकिन अब वो अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो है कहाँ कैसे कैसे फॉरबिडन है ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर कोई इस तरीके से करता है इमीडिएटली, अगर कहीं भी स्ट्रेचिंग होती है, लेग्स की स्ट्रेचिंग होती है, आप ग्राउंड में जाके अगर आप उसके लेग को स्ट्रेच करेंगे किसी भी सिचुएशन में जहां पर शीमेवादा की पोजीशन में एग्जैक्टली अपने आप को लाने के बाद, तो वो जो है उके के लेग को तो अलाउ नहीं है। और उसके बाद आप देखें कि कहाँ के वैलिड एक्शन है। ये स्टैंडिंग में ताचीवाजा में कैसे कैसे आप ला सकते हैं ग्राउंड पे, किस किस पोजीशन से या जो है। और यहाँ इट इज आप इस लेवल पे जो है यहाँ जब नीचे आ जाते हैं नेवादा पोजीशन में, दोनों जब नेवादा पोजीशन में है तो आप लेग को ग्रैब कर सकते हैं और उसमें शीदो नहीं मिलेगा। या आप देखिए कि कांसासुवादा में यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप अंदर हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो भी कंटिन्यू रहेगा ये, जब तक जो आप मूवमेंट में है, वैलिड पोजीशन में है और बाउट कंटिन्यूएशन में रहेगी। चाहे आप अंदर प्लेइंग एरिया से आप सेफ्टी एरिया में जा रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि सेम कैसे शीमेवादा बिना माते के कंटिन्यू करेगा इफ यू आर इवन गोइंग आउट। सेम जब हम कैन में जाते हैं तो ये अलाउ है और यहाँ ये वैलिड रहेगा। एरिया एंड पॉइंट आपको इस वक्त माते नहीं होगा। सेम पोजीशन ये है कि जब आपने एक एक्शन शुरू किया अंदर से और बाहर उसको कंटिन्यू किया, जब तक कि वो रेफरी को ये एहसास ना हो जाए कि आपने छोड़ दिया है या डेड हो गई है पोजीशन या स्टॉप हो गया है, आप तब तक जो है इस पोजीशन में। अब आते हैं हम इस ग्रिप पे कि संखाकू की ग्रिप में जब हम आते हैं तो क्या अलाउ है और क्या नहीं अलाउ है। देखिए आप ये ग्रिप्स हैं आपकी कि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, नेवादा में आपका अपोनेंट चला गया तो आप जो है जा सकते हैं ग्रिप में। लेकिन अगर आप खड़े होके
ताचीवादा पोजीशन में अगर आप ग्रिप करेंगे या अलाउ करेंगे कांसेसु की ग्रिप लेंगे तो वो अलाउ नहीं है। और नेवादा में भी अगर आप ब्लॉक करके बॉडी को उसके लेग से स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों पांव से, है ना, तो जबकि घुटने के बीच में अगर आपका पांव आएगा तो अलाउ है, लेकिन अगर आप अपने दोनों पांव को क्रॉस करेंगे, सीजर करेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे जिससे वो हर्ट हो सकता है, इसलिए वो पोजीशन अलाउ नहीं है। नेवादा कब शुरू होता है कि जब दोनों की जो है नीज जो हैं, घुटने हैं, वो ग्राउंड पे हों। और जब दोनों अगर घुटने हैं ग्राउंड पे, वहां उस पोजीशन से वो लोग नेवादा पोजीशन में जा सकते हैं। और उसके अलावा जब अगर नेवादा पोजीशन छोड़ दिया किसी ने और ग्रिप नहीं है तो रेफरी को माते कह देना चाहिए। और नेवादा में अगर कोई ग्राउंड में लेटा हुआ है स्टोमक के बल, तो हम उसको ग्रिप करके, उसको कंट्रोल करके हम उसको जो है खड़ा भी कर सकते हैं, ताचीवादा पोजीशन में भी ला सकते हैं और उसको हम नेवादा में भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। और अगर उस पर अटैक, वाइट ने जैसे अगर उसको इमीडिएटली अटैक किया और माते नहीं हुआ है और उसका एक या दोनों पाँव में जो है वो उठा हुआ है, तो वो थ्रो जो है वो जो है अगर नेवादा पोजीशन में थ्रो करता है और उसने नीचे वाले ने अगर पाँव को जो नेवादा में उसने स्टैंडिंग वाले का पाँव अगर पकड़ लिया है तो वो जो है उसको शीदो दिया जाएगा लेग ग्रैबिंग की वजह से। निगेटिव जूडो में जो है कोई भी अगर हंसो को माके सबसे पहले अगर कोई भी हंसो को माके मिलता है जो कि शीदो के बाद हंसो को माके है उस, और वो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जूडो नहीं है, तो वो खिलाड़ी आगे रेपेचाज में कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को डायरेक्ट हंसो को माके मिला है और उसने अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जूडो स्प्लिट कर दिया, बदतमीजी कर दी, वो रेफरी के डिसीजन से नहीं मान रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है उसको मौका नहीं मिलेगा। एक बात और है, जैसे कि आपको मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि अभी जो आईजेएफ ने जो रूल किया है कि अगर फाइनल बाउट है और उसमें फाइनल बाउट में दोनों को साइमल्टेनियसली हंसो को माके मिल गया, तो अगर साइमल्टेनियसली हंसो को माके मिल गया है तो वो जो है यानी कि दोनों ही खेलना नहीं चाह रहे, दोनों ही जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में भी हमारे जो है दोनों को हंसो को माके हम दे सकते हैं। लेकिन अगर उस पोजीशन में फाइनल है तो गोल्ड और सिल्वर की जब बात होती है तो दोनों को सिल्वर मेडल मिलेगा, दोनों को में से किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। तो ये हमारी कुछ ये रूल की बात थी। लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखाने जा रहा हूं जो अमूमन हम लोग मिस कर जाते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्योंकि उतना क्लोजली हम उसको वॉच नहीं करते हैं या उतना क्लोजली हम लेते नहीं हैं। तो अब हम आपको उस चीज को हम आपके सामने लाना जा रहे हैं, तो आप प्लीज उसको देखिएगा और मैं रोक के भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ और क्यों ये ऐसा किया गया है। कुछ उसकी के पॉइंट्स हैं।
शेयर कर दीजिए सर। जी जी जी, एक सेकेंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। दिख रहा है आपको शेयर मेरा? यस सर, यस सर। ओके ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है, ये यहां देखें आप, ये किस तरीके से इसने ये कानी बसानी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जो कि बैन हो चुकी है। ये अभी लेटेस्ट जो है क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का है। देखिए उसकी एंट्री, और इसको फास्ट तरीके से देखेंगे तो ये, क्योंकि स्लो में मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर आप इसको बहुत जल्दी से देखते हैं, तेजी में देखते हैं, तो शायद कभी कभी हमसे इग्नोर हो जाता है, ये चीज इग्नोर हो जाती है। देखिए अभी तक रेफरी को ये एहसास नहीं हुआ कि हमें इसको पेनलाइज करना है, लेकिन बाहर से जब इसको देखा गया तो बताया गया कि ये जो है वो हंसुकुमाके है, इसको जो है कामी बसामी का अटैक है, और ये जो है क्योंकि जूडो में अलाउ नहीं है तो इसलिए ये हंसुकुमाके है। ऐसी मैं आपको अभी कुछ क्लिप्स और शेयर करूंगा। सर शेयर नहीं हुआ है। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए अब आप इसमें, उसने आपको लगा, उसने दिखाया कि बाहर, लेकिन एग्जैक्टली इसमें क्या पोजीशन है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। व्हाइट जो है वो ब्लू को, आपने देखा होगा उसने इशारा भी किया, ब्लू के पांव पे पांव रख रही है, उसे रोक रही है, उसको हिट करना चाहती है, उसको परेशान करना चाहती है उसको। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए, अब यहां आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए एग्जैक्टली। तो ये जो पोजीशन है ये इसलिए है कि इसको हम कभी कभी खिलाड़ी अनजाने में भी होती है ये बात। जब अनजाने में होती है तो रेफरी जो है इस सिचुएशन पे को अवॉइड करता है कि चलो ठीक है, कभी कभी मूवमेंट में ऐसा हो जाता है, अमूमन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब भी हो जाता है। लेकिन अगर ये रेगुलर हो और इंटेंशनली हो तो इस पे हंसुकुमाके है। अगर बार बार, जब आप, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जूडो है कि आप जो है वो अपोनेंट को जो है जबरदस्ती आप हिट करना चाहते हो, आप जूडो, दिस इज नॉट जूडो। तो साफ आईजीएफ ने कहा है कि ये दिस इज हंसुकुमाके। अब मैं आपको नेक्स्ट पे आता हूं। ओके, जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
सुरेश जी, सर हाँ ये शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, वहां जाना पड़ेगा मुझे वापस। न्यू शेयर कर लीजिए। न्यू शेयर, ओके। न्यू शेयर की ये खुल नहीं रही है वो क्लिप जो है। तो आप स्टॉक नया शेयर ये मतलब पहले जो कर रखे थे वो बंद कर लीजिए, उसके बाद शेयर पे दे दीजिए। ओके, जस्ट ये आपने स्टॉप शेयरिंग दिया था क्या? हाँ शायद नहीं हुआ स्टॉप शेयरिंग, राइट। जस्ट सेकेंड। स्टॉप शेयरिंग नहीं हुआ था मेरा जहां तक है। नहीं, आपका शेयर स्क्रीन तो नहीं है, शेयर नहीं है अब। बंदी है हमारे साथ तो शेयर नहीं है। आप ओके, अभी शेयर पे शेयर ऑप्शन पहले जो आपको ओपन करना है वो ओपन कर लीजिए, उसके बाद मिनिमाइज करके फिर शेयर ओपन ऑप्शन करना पे है, जाके ओपन किया। अच्छा, मिनिमाइज कर लीजिए, फिर फिर शेयर में जाइए, वहां हाँ, से उसको सेलेक्ट करके फिर शेयर कीजिए। ओके, शेयर में जाए। नहीं हुआ। सर अभी तक आपने जैसे किया था, जैसे शेयर ओपन नहीं, वो हमें ओपन नहीं हो रहा, वो शेयरिंग जो है, वो शेयरिंग वाला ओपन। शेयरिंग पे दिखाई ही नहीं दे रहा है वो। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा वो। तो आपने उसको अलग से ओपन कर रखा है? हाँ, अलग से ओपन किया हुआ है मैंने, तो उसको मिनिमाइज किए हैं? मिनिमाइज कर दिया मैंने। ये है, तो शेयर पे नहीं दिख रहा है? वो शेयर पे नहीं दिख रहा है। फिर आप डेस्कटॉप तो दिखना चाहिए। एक बार और क्लोज करके फिर ओपन करके चेक कर लीजिए सर। ओके, ओके, ये हम खोलते हैं और ये शेयरिंग नहीं हो रही है इसमें। क्या वीडियो फाइल है? या वीडियो फाइल है। जो शेयरिंग का जो आइकन आ रहे थे हाँ हाँ, वो नहीं आ रहे हैं इसमें। शेयरिंग का तो आएगा नीचे, ग्रीन देखिए, ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन। आपका जूम जो ऐप ओपन हो रखा है उस पे नीचे देखिए, शेयर स्क्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको। एक मिनट, नहीं इसमें वो आइकन ही नहीं खुल रहा है जो शेयरिंग में आपका ये स्क्रीन में देख रहा हूँ। ओके, तो उसके अलावा जो है मेरी यहाँ से नई स्क्रीन आ रही है। शेयर का ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको? ना शेयर ही ना नहीं ना, दिख रहा? शेयरिंग नहीं ओके दिख सर, रही। मैं आपको फिर दोबारा होस्ट बनाता हूँ। अभी मैं वापस रिक्लेम करके फिर दोबारा करता हूँ। राइट, राइट, ओके, सॉरी फ्रेंड्स। ओके सर, अभी ट्राई कर लीजिए। आपको शेयर का ऑप्शन नीचे नहीं आ रहा सर? नहीं आ रहा, शेयर ही नहीं आ रहा ना सर इसमें। जहाँ पे आपको म्यूट, स्टार्ट वीडियो ये सब आ रहा है। नहीं, आप ये सिर्फ आपका ये हमें दिख रहा है। हाँ, ये
बंद हो गया, ये ऑन हो गया, ये म्यूट बाय ऑडियो, हाँ हाइड वीडियो, एग्जिट, मिनिमाइज वीडियो। नहीं 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 नहीं, सर सर हाँ आपका जूम आप ओपन कर लीजिए, उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए, उसके नीचे आप देखिए आपको म्यूट, वीडियो, पार्टिसिपेंट्स, चैट, शेयर बॉक्स सब दिखेगा। नहीं अभी नहीं, तक वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो सर आप जो आपका छोटा एक स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ तो उस पे आप ऊपर जाइए राइट साइड में, तो उस पे आपको ग्रिड ऑप्शन दिखेगा। एक मिनट, हमने ये खोला, इसमें ये छोटा स्क्रीन ही दिख रहा है बस। सर आप ऊपर जाइए, स्टॉप शेयरिंग करके कुछ आ रहा है क्या आपका? नहीं नहीं, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा उस पे। आना तो चाहिए सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आपका विंडो के नीचे तो सबके सबके विंडो के नीचे तो आएगा वो पूरा जो भी दिख रहा है, शेयर स्क्रीन, स्टॉप नहीं, हमें वीडियो। ये दिख रहा है। अगर हम इसको बंद कर देते हैं, बंद नहीं करना सर, आप जिस स्क्रीन पे है उस पे नीचे आइए, जो अपना जूम वाला ऐप है ओपन रखे है ना, हाँ हाँ, उस पे नीचे कर्सर लेके आइए, तो आपको वहां पे म्यूट, वीडियो सब दिख रहा है। ये खुले, ये बड़ा कैसे, ये अभी ये छोटा हो गया है, ये बड़ा नहीं हो रहा एक्चुअली में। सर उसके लिए आप ऊपर जाइए, उस स्क्रीन के ऊपर, वहां पे उसी स्क्रीन के जो छोटा स्क्रीन आप बता रहे हैं उसी के हाँ ऊपर की तरफ राइट साइड में हाँ, अब खुल जाइए। गया। राइट राइट, अब खुल गया, ठीक है, थैंक यू। तो अभी नेक्स्ट मैं शेयर करता हूं। हम मिसलिनियस पे थे, कंटिन्यू करूं? हाँ हाँ सर, आप ओके शेयर स्क्रीन पे कर लीजिए। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। Share screen with आ गया? नहीं नहीं, सर अभी नहीं आया है। आप शेयर कीजिए ना, शेयर उसको, शेयर स्क्रीन पे जाके उसको क्लिक करके सेलेक्ट करके फिर शेयर कीजिए। ओके। हाँ अभी आ ओके, गया। न्यू शेयर। ओके, रेफरी ने ये दिया है अपॉन, लेकिन अगर आप देखें, जो अभी हम जब रूल की बात करते हैं, तो इसने, अगर आप यहां से देखें कितना टाइम इसने इस ग्रिप को का इस्तेमाल किया है। ये रॉन्ग ग्रिप है, और देखिए, और ये उसने अप्लाई किया, तो ये माते होगा और शीदो वाइट को होगा, क्योंकि इसने लॉन्ग टाइम तक जो है ये रॉन्ग ग्रिप की है। और क्योंकि जैसे ही क्रॉस ग्रिप होगा, इमीडिएटली माते हैं। फिर से आप इसको देखेंगे एक दफा, ये देखिए लंबे वक्त तक जो है वाइट जो है क्रॉस ग्रिप किए हुए है, ये देखिए, ये और अटैक इसने नहीं किया है। तो जबकि इस टूर्नामेंट में ये इपॉन दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है ये माते हुआ, जब इपॉन का सूर्य माते हुआ तो इसको चेक किया गया, और क्योंकि बहुत देर तक, जैसे कि बताया कि क्रॉस ग्रिप
is almost immediately mate and shido if there is no attack. तो जो है अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, न्यू शेयर पे। ये आप एक दफा पूरा देख लें। इसमें बहुत लोगों को बहुत करीब से एक चीज नहीं दिखी होगी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये डेंजरस तरीके से ब्लू, देखिए ब्लू का हेड, अभी हम इसको अदर साइड से भी देखेंगे तो नीचे ग्राउंड पे लेके गया है जो है अपने आप को करने के लिए, और अटैक किया इसने। ये इसको आप यहाँ देखिए, मैं इसको फ्रीज करता हूं अभी, एक मिनट। एग्जैक्टली मैं आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूं दूसरे साइड से देखता हूं मैं भी इसको। ये देखिए आप ब्लू की पोजीशन देखिए हेड की, और थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अभी ये देखिए, एंड ही इज लैंडिंग, ही हिमसेल्फ लैंडिंग ऑन हिज हेड। इस सिचुएशन में ये वो सिचुएशंस हैं जो कि हम लोग क्या बड़े बड़े रेफरीज जो है वो मिस करते हैं, उस वक्त मिस करते हैं जब ये बाउट चल रही होती है, बहुत तेजी से बाउट चल रही होती है, अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी जो है ऐसी कमियां ऐसी करते हैं कि जो बाउट दूसरे फेवर में चली जाती है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमारे एक खिलाड़ी ने वजारी लेने के बाद भी एक क्वालिफाइंग राउंड में और कानी वसामी जो है वो ट्राई कर दिया और उसे हंसोकुमा के मिल गया। तो ऐसी सिचुएशंस जो है वो अमूमन, क्योंकि अब केयर सिस्टम है, केयर सिस्टम में फौरन पकड़ ली जाती है और उसको जो है और सामने रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेफरी ने ये दिया है वजारी, लेकिन अगर आप इसकी सिचुएशन देखेंगे तो आप इसको फिर से एक दफा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से आपको स्टॉप करके दिखा पाऊंगा। लेकिन यहां पर कमीशन कहता है कि ये शीदो है वाइट को, इमीडिएटली माते एंड शीदो क्यों है। आप देखिए इसकी पोजीशन कि इसको जो है
देखिए, ये देखिए, उसके हाथ को उसने ट्विस्ट किया है पूरा। पोजीशन देखिए, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और आप इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन से डायरेक्ट जो है वो आप को आप नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में आप जो है कंधा निकलने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या एल्बो के ब्रेक होने के भी। तो क्योंकि कोमिकाता लेने के बाद आप अगर ग्राउंड में मूवमेंट में आते हैं, कोई भी टेक्निक लगाते हैं, और उसको जाते वक्त अगर आप इस पोजीशन को लेते हैं तो अलाउ है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट हाथ को रोल करते हुए लेके जाएंगे, जिससे कि अपोनेंट का हाथ का लॉस हो सकता है, उसको इंजर्ड हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ये सिचुएशन अलाउ नहीं है। फिर से आपको मैं दिखा रहा हूं इसको। देखिए, ये मैं आपको उसके बाद आपको जो है दूसरा वीडियो दिखाता हूं। मनोहर सर। हाँ जी, सर लास्ट 5 मिनट्स सर। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा टाइम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मैं कुछ वीडियो क्लिप इंपॉर्टेंट है दिखाना चाहता हूँ। सर एक्चुअली 12 o'clock से बैडमिंटन स्टार्ट है सर, तो हमें कम से कम 15-20 मिनट पहले तो ओपन करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। ये शेयर हो रहा है ना अभी यस स्क्रीन? सर, यस सर। ओके, तो देखें आप जल्दी से। देखिए, इसमें क्या है कि कोई भी रिस्क जहां पर हेड डायरेक्टली लगेगा वहां पर हंसों को मार के दिया जाएगा। ये देखिए, अभी आप वाइट को गौर से देखिए इसमें कि किस तरीके से वो लैंड कर रहा है। और ये यहां से आप देखिए अगर सिचुएशन, तो इस पोजीशन में हंसों को मार के दिया जाएगा, और हंसों को मार के देने के बाद ये रेपिचार्ज में खेल सकता है। अब हम आते हैं जो है न्यू शेयर पे, जो कि शेयर नहीं हुआ है। अभी आ गया, आ गया। देखिए, अब इसमें आप गौर से देखिए, जो अभी हमने रूल में डिस्कस किया था वो आपको खुद दिख जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप देखिए। तो आपने क्या देखा, ये देखिए किस तरीके से ये किस तरीके से जो है वो ब्लू ने व्हाइट की जो है जुडोगी को निकाला। और ये तो ये दिस इज शीदो। अगर अपोनेंट की जुडोगी या अपनी जुडोगी ड्यूरिंग द कंपटीशन आप बाहर निकालते हैं तो वो शीदो है। नेक्स्ट, न्यू शेयर पे हम आपको दिखाते हैं कि इलीगल जॉइंट जो है देखिए,
ये इलीगल जॉइंट लॉक है। आप देखिए, इसको फिर से गौर से देखिए कहाँ पर, और ये इसको क्या जो है पेनल्टी है इसकी। ये देखिए, जो डायरेक्ट विदाउट अटैक जो है आप जा रहे हैं, तो दिस इज हंस कुमार के। फिर से इसको मैं पीछे करता हूं, देखिए ये कोई भी जेन्युइन अटैक नहीं है। सीधे उसने हाथ को पकड़ के उसको सीधे अपनी बॉडी को गिराते हुए सिर्फ उसका दोनों आप देखिएगा ना, जो है उसका प्रेशर उसके हाथ पे है अपोनेंट के। ये और पाँव से उसने पुश किया, और ये उसका हाथ उसका डायरेक्ट ग्राउंड अपनी बॉडी के नीचे। ये सिचुएशन जो है, दिस इज नॉट गुड सिचुएशन फॉर जूडो, so this is also Hansi Kumaki. Sir, Yes, sorry finish sir, कर हैं? sorry, but मेरा भी मजबूरी है. Okay, no problem. Just I say few Yes, sir. words, so Yes, I sir. can start to go to no share, so I have to restore, right. Okay. So friends and my colleagues and coaches, all the senior and junior and new coaches of India, मैं देख रहा हूँ सोदी साहब को, सबको सामने, दीवन जी भी बैठे हुए हैं, और तमाम जो मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे उम्मीद है कि जितना मैं एक्चुअली में देना चाहता था उतना नहीं दे पाया, वक्त बहुत कम था। एग्जैक्टली अब जो हम हमारी पोजीशन इस वक्त आ रही थी, जो हम आपको वीडियोस, जो क्लिप्स दिखा के हम आपको एजुकेट करना चाह रहे थे, वो टाइम उतना हमें नहीं मिल पाया। अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो वी हैव मोर देन 200 क्लिप्स, जिसके ऊपर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको दिखा के बताया जा सकता है। और उसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा मिस्टर जायसवाल जी से और मेरे मदद से कि इस वेबसाइट पे डलवाया जाए, और अगर आप चाहते हैं तो मेरे मेल पे या मेरे फोन पे आप, मैं इसके थ्रू मुझे अपनी मेल आईडीज भेज दें, मैं आपको भी डायरेक्ट लिख भेज सकता हूँ और उसका रिजल्ट भी भेज सकता हूँ, जिससे आप अपनी एजुकेशन हो। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आज एक डिसिप्लिन की बात आपसे शेयर की है इंडिया के जूडो के लिए, वो बहुत जरूरी है। मेरे कोचेस, प्लीज आप दूसरे बच्चों को भी अपना समझिए, अपने बच्चों को आप जैसे अपना समझते हैं उसी तरीके से। जब तक हम दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ओलंपिक में मेडल इतना आसान नहीं है जितना हम लोग अपने आप को कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम सबको अब एक एक सोच के साथ जूडो में चलना होगा, एक राय के साथ चलना होगा, और एक प्लान के साथ चलना होगा, तभी हम मेडल दे सकते हैं इंडिया को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपने शायद इसमें से कुछ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक भी दीजिएगा। लेकिन अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए परिवार के साथ, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड बाय। Thank you very much, sir. सर, आई होप सभी ने अपना अटेंडेंस मार्क कर लिया होगा, तो मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। प्लीज जिसने भी अटेंडेंस मार्क नहीं किया है वो प्लीज कर दीजिए, एंड हम फिर कल मिलेंगे सेम टाइम विद यूजिंग द सेम आईडी सर। ओके सर, थैंक यू। विद दिस 1 मिनट का टाइम देना सर, उसके बाद मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।
ओके, थैंक यू सर, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। Thank you very much. Bye everybody. Thank you Suresh ji थैंक यू सर। for your effort.